Welcome again. Welcome into another lecture regarding foundations of education. In this lecture, we will discuss learning and maturation, their definitions, and their relationship in the later part. So, in this very first slide, you will see there are certain definitions regarding learning. What does learning mean? Simply, learning means the change in behavior. In all these definitions, we will analyze that if you read all these definitions, you will come to at a conclusion that learning simply means change in behavior, or rather permanent change in behavior or modification of behavior. So how this modification of behavior comes through experiences, through by training, through by practice. So simply learning means change in behavior through experience, through practice, through training, or permanent change in behavior. So the other areas or definitions regarding learning are a change in behavior as a result of experience or practice, as I earlier told you, or it is the acquisition of knowledge, or knowledge gained through study, or to gain knowledge or our skill in something through study, teaching, instructions, or experience. So all these are the ways or the methodologies by which we get knowledge, we get understanding. So the process of gaining knowledge, so a process by which behavior is changed, our behavior is shaped, our behavior is controlled. We will discuss all those things, but very in a very brief way. The individual process of constructing understanding based on experience from a wide range of sources. Our learning is the change in behavior. We see the characteristics of the nature of the learning or it's a related information. So learning is what is said earlier, that is change in behavior, or it is a continuous and lifelong process. It is a universal process. Learning is purposive and goal directed, and it involves experiences and recourses. Our learning is the product of activity and environment. So these are the characteristics, rather we can say the nature of learning. So learning simply means it is a change of behavior. Now comes to maturation. Maturation means the develop. It is a developmental process. It is a physiological one that which a person is in a definition. I'm reading the definition that maturation is a development process within which a person from time to time manifests different traits, the blueprints for which have been carried out in the cells from time to time of conception. So Gates-Field maturation is a growth that proceeds regularly within a wide range of environmental conditions or take place without special conditions of stimulation such as a training or practice. Similarly, maturation is a it is a process whereby behavior is modified as a growth and development. So इन तारीफों में अगर आप ये देखें तो यहाँ पर आपको मैचुरेशन में सिर्फ फिजियोलॉजिकल यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट या फिजिकल स्ट्रक्चर की चेंज मिलती है, यानी वहाँ पर चेंज आती है इसमें. सो इसमें आगे चलकर देखें तो लर्निंग और मैचुरेशन दोनों क्या हैं कि क्लोजली इंटर रिलेटेड हैं. समटाइम्स इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू से definitely as to which behavioral change are the result of learning and which are the result of maturation. So दोनों इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन लर्निंग जो है वो आप लर्न कर रहे होते हैं, आपकी कॉग्निटिव में चेंजेस आ रही होती हैं और आपकी मैचुरेशन उसको हेल्प कर रही होती है, और मैचुरेशन आपकी लर्निंग को हेल्प कर रही होती है. ये चीज़ें दोनों हम आगे देख रहे हैं. देखिए, मैचुरेशन मेक्स लर्निंग पॉसिबल. मैचुरेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि आप टाइम के साथ साथ मैच्योर हो रहे होते हैं, लेकिन आप लर्न भी कर रहे होते हैं. अगर आप उस स्टेज पर वो लर्न नहीं कर रहे होते तो इसका मतलब ये है कि वो लर्निंग का प्रोसेस आपका रुका हुआ है, और मैचुरेशन का डेफिनेटली फिजिकल मैचुरेशन आपकी हो रही है. सो ये मैचुरेशन जो है वो मेक्स लर्निंग पॉसिबल, यानी लर्निंग टेक्स प्लेस. लर्निंग उस वक्त होगी ओनली if the stage of that type of learning has been achieved through a process of maturation. यानी एक बच्चा है, अगर वो 7 साल की एज तक पहुंच गया है तो उसको 7 साल तक की एज की जो लर्निंग प्रोसेस है वो उसको
मैच्योर होकर उस स्टेज पर पहुंचा है, तो तब वो लर्न कर पाएगा, वो वक्त से पहले लर्न नहीं कर पाएगा। यानी कि मतलब 5 साल का बच्चा 7 साल की का नहीं, या 10 साल की जो मैच्योरेशन तक की जो लर्निंग है उसको नहीं अचीव कर पाएगा। ठीक है, तो मैच्योरेशन जो है वो क्या कर रही है, लर्निंग को हेल्प आउट कर रही है। इसी तरह से मैच्योरेशन सेट्स लिमिट्स टू व्हाट अ पर्सन कैन बी आर बिकम। यानी कि मैच्योरेशन क्या कर रही है कि वो हदूद सेट करती है कि एक ख़ास हद तक आप उसको, यानी एक हद से ज़्यादा नहीं है, बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस ऑफ द हेरिडिटरी एंडोमेंट ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट कैन नॉट गो बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट इवन व्हेन लर्निंग। अगर लर्निंग इनकरेज हो भी रही है, लेकिन अगर डेवलपमेंट का वो प्रोसेस में या मैच्योरेशन का वो प्रोसेस अभी नहीं आया, तो आप एडवांस इतनी ज़्यादा लर्निंग करवा कर भी अगर मेच्योरिटी लेवल उसका वो नहीं है, तो आप उस पे के साथ वो जो डिज़ायर रिजल्ट्स हैं वो अचीव नहीं कर सकेंगे। इसी तरह से वेरिएशंस इन पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी द डिफरेंट इन्वायरमेंटल जो इन्फ्लुएंसेस हैं, यानी मुख्तलिफ जो इन्वायरमेंटल जो सिचुएशंस है या इन्फ्लुएंसेस हैं चिल्ड्रन को जो एक्सपीरियंस करता है, वो उसकी उसकी डेवलपमेंट के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। और इसी तरह से जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ड्यू टू मैच्योरेशन अलोन एज इन सम एनिमल स्पीशीज इंडिविजुअली वुड बी रिड्यूस टू अ मिनिमम। ठीक है, अच्छा, फिर इसी तरह से डेप्रीवेशन ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज लिमिट्स डेवलपमेंट। यानी लर्निंग अगर अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिली हैं, लेकिन आप उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ लर्निंग का जो लर्निंग की कैपेस जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली हैं, और आपका डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो आपके यहाँ एक स्टैग्नेंट है या वीक है। सो इसे मैं पढ़ लेता हूँ। व्हेन द एनवायरनमेंट जो आपको लर्निंग एनवायरनमेंट है, या जिस तरह की भी है लर्निंग, अब स्कूल लर्निंग नहीं है, लर्निंग को एक ब्रॉडर सेंस में यहाँ आप लें। When the environment limits opportunities for learning, children will be unable to reach their hereditary potential। अगर उसको hereditary potential के हवाले से वो लायक है, या वो जिस कैटेगरी में भी आप फॉल करते हैं वो उसमें है, लेकिन अगर उसको वो वाली अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं हो रही है, तो वो डेवलपमेंट को उस प्रोसेस को नहीं पहुंच रहा है। सिमिलरली इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर टाइमिंग। यानी एक ख़ास टाइम, यानी लर्निंग भी मतलब लर्निंग का जो प्रोसेस है वो एक उसकी एक स्टेज है, उस स्टेज पर वो लर्न करेगा, और एक प्रॉपर टाइम पर, यानी रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच एफर्ट children put into learning, they they cannot learn until they are developmentally ready to learn। यानी वो उस लेवल तक मैच्योरिटी के उस लेवल तक पहुंच चुके हैं तो वो लर्न करेंगे, वरना वो यानी पहले उसको लर्न करने के उसमें पोजीशन में वो नहीं होंगे। इसी तरह से मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर फॉर लर्निंग एंड मैच्योरेशन, the purpose is modification of behavior। यानी लर्निंग का हमारा मकसद क्या होता है, या मैच्योरेशन का जो पर्पस क्या है, वो आपके यानी बिहेवियर को मॉडिफाई करे। लेकिन लर्न बिहेवियर डिफर्स फ्रॉम बिहेवियरल एट्रीब्यूटेड टू मैच्योरेशन। जो लर्न बिहेवियर हैं वो जो आपकी फ़िज़िकल ग्रोथ के साथ जो मैच्योरेट जो एट्रीब्यूट्स हैं मैच्योरेशन के हवाले से, वो क्या करेंगे, वो डिफर्ड होंगे, वो मुख्तलिफ हैं। अब यहाँ मैं आपको इस स्लाइड में फ़र्क की तरफ लेकर आता हूँ, डेफिनीशन के अतबार से, प्रोसेस के एतबार से, और फिर जो एक्सटर्नल स्टिमुलस या स्टिमुलाई के एतबार से कि इनके अंदर क्या फ़र्क है। लर्निंग बेसिकली क्या है? बेसिकली लर्निंग जो है वो एक प्रोसेस है दैट रिजल्ट्स इन अ बिहेवियरल चेंज इन द इंडिविजुअल। यानी एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में जो चेंज आएगी तो उसे हम लर्निंग कहेंगे। जबकि मैच्योरेशन क्या है? इज़ अ प्रोसेस वेयर द इंडिविजुअल लर्न्स टू रिएक्ट टू सिचुएशंस इन एन एप्रोप्रिएट मैनर। यानी अगर आप उस मुनासिब वक्त पर मुनासिब सिचुएशन के अंदर जब आप मुनासिब तरीके से रिएक्ट करेंगे, जिसको
को ख़ास तरीके से रिएक्ट करना चाहिए था, तो उसे आप मैच्योरेशन कहेंगे। इसका मतलब ये है कि आप सर्टेन एज तक पहुँचते हैं और आपने वो चीज़ लर्न भी की हुई है, तो आप उसे मैच्योरेशन कहेंगे। लर्न तो आपने कर लिया, लेकिन मैच्योरेशन क्या है? एक प्रोसेस है कि जो इंडिविजुअल लर्न करता है कि उसको मुनासिब सिचुएशन के साथ, मुनासिब मैनर के साथ किस तरह से वो करना है। इसी तरह से अगर इसको ये डेफिनेशन की थी। प्रोसेस की बात करें तो लर्निंग इज़ थ्रू प्रैक्टिस होता है और लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस होती है। यानी जितनी आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, मेरी पहली डेफिनेशन में मैंने इसका जो क्रक्स कहा था कि वो प्रैक्टिस है, ट्रेनिंग है, ये एक्सपीरियंस से जो है वो हमें क्या चीज़ मिल रही है? लर्निंग मिल रही है। जबकि मैच्योरेशन जो है इट इज़ थ्रू इंडिविजुअल ग्रोथ है। आपकी यानी फिजियोलॉजी से बहस कर रही है, आपकी ग्रोथ है, आपकी डेवलपमेंट है। अगर वो हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ क्या हो रहा है? प्रोसेस के एतबार से मैच्योरेशन हो रही है। गॉट द पॉइंट? एक्सटर्नल स्टिमुलाई, लर्निंग जो है वो लर्निंग इज अ रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई डेट रिजल्ट्स इन द इंडिविजुअल चेंज। यानी आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं जितनी भी आपके इर्द गिर्द स्टिमुलाई, एक्सटर्नली स्टिमुलाइज हैं, यानी जो भी एक्टिविटी हो रही है, जिस तरीके से भी आपको सिखाया जा रहा है, समझाया जाता है। अगर गेम है तो जिस तरह सिखाई जाती है आप उसका भी रिस्पॉन्स शो करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने लर्न किया है। इसी तरह से पेवलोव ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, बीएफ स्किनर ने भी एक्सपेरिमेंट्स, बहुत से थॉर्नडाइक और इस तरह के लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए लर्निंग के हवाले से कि उन्होंने लर्निंग को एक एक्सटर्नल यानी स्टिमुलाई के तौर पर उन्होंने सिखाने की कोशिश की और बताने की कोशिश की है उन क्लासिकल और ऑपेरेंट काइंड ऑफ लर्निंग्स में। सो लर्निंग क्या है कि आपको स्टिमुलाई का रिस्पांस शो करता है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई का, जबकि मैच्योरेशन डज नॉट नीड एक्सटर्नल। मैच्योरेशन तो आपके यहाँ एक डेवलपमेंटल प्रोसेस हो रहा है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है और आप एक मैच्योरिटी की सर्टेन स्टेज पर पहुंच रहे होते हैं। और साथ साथ अगर आप लर्निंग भी कर रहे होते हैं तो ये इसमें एक क्या आ जाता है? एक बैलेंस किस्म का वो आ जाता है। ठीक है। सो एक और इस स्लाइड में अगर आप देखें तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या है? लर्निंग क्या है कि वही बात होगी, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग। आप क्या चीज़ एक्वायर करते हैं? आप नॉलेज एक्वायर करते हैं, आप स्किल एक्वायर करते हैं, आप बिहेवियर एक्वायर करते हैं, लेकिन आप ट्रेनिंग से, आप एक्सपीरियंस से, आप एजुकेशन से, यानी आप नॉलेज, स्किल और बिहेवियर वगैरह एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग और एजुकेशन से हासिल करेंगे। जबकि मैच्योरेशन क्या है? मैच्योरेशन प्रोसेस है ऑफ बिकमिंग मैच्योर होने का और डेवलप्ड होने का, बोथ मेंटली और फिजिकली। यानी मैच्योरेशन क्या है? सिर्फ फिजिकली ही नहीं है बल्कि आप मेंटली भी मैच्योर हो रहे हैं। ठीक है। और लर्निंग क्या है कि आप स्किल्स ले रहे हैं, सिर्फ आप नॉलेज ले रहे हैं, आप बिहेवियर्स को मॉडिफाई हो रहा है। ठीक है। इसी तरह से लर्निंग हमेशा मेंटल प्रोसेस है, जबकि मैच्योरेशन मेंटल भी है और फिजिकल डेवलपमेंट भी है। अंडरस्टैंड? इसी तरह से एक और है कि लर्निंग क्या है? इट हैपन्स थ्रू लर्निंग हमेशा एक्सपीरियंस से आएगी, प्रैक्टिस से आएगी, ट्रेनिंग से आएगी, एजुकेशन से आएगी, और ये आपकी ओवरऑल यानी फिज़िकल ग्रोथ वगैरह है। और लर्निंग जो है वो इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और यानी मैच्योरेशन में जो है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की ज़रूरत यानी नेसेसरी नहीं है। ठीक है। ये भी एक फ़र्क है इसमें। इसी तरह से इस स्लाइड में अगर आप देखें तो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेजेस एंड लेवल्स ऑफ मैच्योरेशन, जो आपके यहाँ एक इंडिविजुअल के हाँ जो है लेवल्स ऑफ मैच्योरेशन जो होते हैं कि वो यानी वो चाइल्डहुड से बॉयहुड और एडल्ट और इस तरह से, तो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेजेस एंड लेवल्स ऑफ मैच्योरेशन हेल्प्स द टीचर्स टू नो what and when to begin training. If too much is expected from a child at a given age, children are likely to develop feelings of inadvocacy. यानी अगर आप थर्ड क्लास का स्टूडेंट है और उसको आप फ़लसफ़े की जो है वो जहतें पढ़ानी शुरू कर दें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो लर्निंग का प्रोसेस उसके यहाँ उसकी मैच्योरिटी लेवल नहीं है कि वो हो। ऑन द अदर हैंड, इफ़ टू लिटिल इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ देम, then they are deprived of incentives to develop their potential, vice versa. ठीक है जी। और if learning precedes maturation,
देयर इज़ मोर वेस्टेज ऑफ टाइम कि आप टाइम से ये मैच्योरेशन से पहले ही लर्निंग इतनी ज़्यादा करवा रहे हैं। सो एंड एनर्जी तो आपका टाइम भी ज़ाया होगा, आपकी एनर्जी भी ज़ाया होगी, ठीक है। सो नॉलेज ऑफ मैच्योरेशन और डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ अ चाइल्ड आल्सो सजेस्ट वेदर द चाइल्ड इज़ मैच्योर। यानी एक टीचर के लिए, एक लर्नर के लिए, एक जो टीचर है उसके लिए ये इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि भाई एक बच्चा जो है वो किस लेवल से, डेवलपमेंटल लेवल से गुजर रहा है मैच्योरेशन की, और एंड ओल्ड इनफ टू प्रॉफिट बाय टीचिंग, और उसकी टीचिंग तब जाकर एक बेहतर टीचिंग होगी। इन केस अ कंसेप्ट इज टॉट बिफोर द अप्रोप्रिएट एज, टीचिंग विल गो वेस्ट। तो इस तरह से टीचिंग जो है वो उसकी फजूल रहेगी। और लास्ट स्लाइड में देखें, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑफ चेंजेस दैट टेक्स प्लेस एज रिजल्ट ऑफ लर्निंग एंड मैच्योरेशन वुड मेक अ टीचर एंड इस टीचिंग इफेक्टिव। अगर उससे अंडरस्टैंडिंग है तो उसकी टीचिंग जो है वो बड़ी इफेक्टिव होगी। इसी तरह से मैच्योरेशन लेवल्स जो हैं वो हैव इम्प्लीकेशंस ऑन द करिकुलम सिलेक्शन, कि कौन सी आप लेवल पर उसको कौन से टाइप का करिकुलम पढ़ाना है या सेट करना है उसके लिए। सो करिकुलम डिज़ाइन करना है, करिकुलम शुड बी चोजन अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ लर्निंग एंड मैच्योरेशन के। आप एक बच्चे का लेवल जो है वो ए लेवल का है, ओ लेवल का है, उसकी स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है। फॉर एग्जांपल दी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड उसके लिए फॉर 6 to 12 क्लास के लिए, प्ले वे मेथड जो है वो बच्चों के लिए होता है, उनके लिए लेक्चर नहीं होता है। इसी तरह से लेक्चर मेथड जो है वो ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स लोगों के लिए सफिशिएंट होता है। आई होप डेट यू फाइंड दिस लेक्चर फ्रूटफुल। थैंक्स फॉर योर passive kind listening. I will wait for your nice comments. Thanks.